Today we'll begin with the reading and chapter-wise explanation of immunology. Immunology के basically इग्नू में दो courses हैं, एक BSc जनरल में है और इसके अलावा भी एक BSc बायोकेमिस्ट्री में है. So we are picking up with the BB CCT 127. लेकिन इसके अलावा एक जो कोर्स है which is BZYT वो भी immunology का है. Both the courses have the same content, लेकिन जो book का pattern है वो yes of course थोड़ा सा different है. So we are beginning with the इम्यूनोलॉजी ब्लॉक वन. अगर हम देखें तो एज नॉर्मल आप लोगों को पता होगा कि इग्नू की हर बुक में 4 ब्लॉक्स होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट ब्लॉक. The first block has 3 chapters. The first one is cells and organs of immune system. तो हम begin करते हैं cells and organs of immune system के साथ. Beginning with introduction. तो अगर हम introduction से start करें, have you ever noticed and wondered why most people who have chickenpox do not suffer from it again for the rest of their life? So basically आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि जिन लोगों को चिकन पॉक्स एक बार हो चुका होता है तो उन्हें दोबारा नहीं होता, या फिर छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों लगते हैं. Why some people are more prone to diseases than other? Are you all aware that despite our mutual dependence on the environment, our surroundings contain a variety of potentially pathogenic infectious agent? तो ऑल्दो हम इन्वायरमेंट पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन स्टिल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेनिक इन्फेक्शियस एजेंट, पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है. These infectious agents can enter our body via the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and injuries, and through the damaged skin. These infectious agents are happy to use us as their safer shelter for multiplication, and in return affect us and cause diseases. सो बेसिकली ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये हमें कंसिडर करते हैं अपने लिए शेल्टर, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके माइक्रोब रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इनकी वजह से डिजीजेज हो जाते हैं. इन स्पाइट ऑफ अस बीइंग सराउंडेड एंड अटैक्ड बाय वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू रेसिस्ट दीज डिजीजेज. अब हमारी बॉडी में एवरी टाइम दैट मीन्स 24/7 हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं थ्रू द एयर वी ब्रीद और थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, लेकिन एवरी टाइम वी आर नॉट गेटिंग डिजीज. दैट मीन्स हमारी बॉडी इन डिजीजेस को रेजिस्ट कर रही है. To counteract the invasion of the infectious disease, we humans have developed a series of defense mechanisms that has certain a state of immunity. तो बेसिकली हमारी बॉडी में एक स्टेट है विच इज़ इम्यूनिटी, एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन सारे इन्फेक्शन से फ्री हो सकती है. Immunity thus can be defined as the ability of an organism to resist a particular infection. तो अगर हम immunity की definition की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास immunity की definition है कि immunity can be defined as the ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of immune system, which is composed of sensitized white blood cell और specific antibodies. तो यहाँ पे हमारा जो immune system होता है जिसकी वजह से हमें immunity मिल रही है उसमें बहुत सारे WBCs हो सकते हैं और काफ़ी सारी antibodies हो सकती हैं. The working of immune system provides the foundation for the very interesting subject called immunology. तो इसी की वजह से हम immunology जैसे subject को पढ़ पा रहे हैं. Immunology can be defined as a scientific study of how the body protects itself from infectious diseases. हमारी बॉडी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, जो कि बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स के थ्रू हो रही है, विच आर लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई या फिर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि वर्म्स वगैरह. द इम्यून सिस्टम has evolved a complicated and dynamic network of cells, chemicals, and pathways to protect multicellular organism from pathogen. इम्यून सिस्टम किसी एक सेल का नाम काम नहीं है, इसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे केमिकल लाइक साइटोकाइंस वगैरह, बहुत सारे पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे की तरह जो ओवरऑल हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं. Although elements of these networks can be found throughout the plant and animal kingdom, the focus of this course will be on highly evolved mammalian immune system. अब डिफरेंट अगर हम यूनिसेल्यूलर से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक की बात करें तो हर किसी में जो इम्यून सिस्टम होंगे, जो इम्यून सिस्टम के तरीके होंगे, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस मिलेंगी. बट इन दिस पार्ट वी आर स्टार्टिंग अबाउट द मैमल्स, या हम कह सकते हैं ह्यूमन्स और एनिमल्स के बारे में जो ब्रॉड कैटेगरी है हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं. Our goal in this unit is to introduce to you the background and concept of immunology. तो हम यहाँ पे immunology के concept के बारे में पढ़ेंगे. In the first section of this unit, you will learn how first vaccine was developed and the pioneering contribution of Edward Jenner and Louis Pasteur. You will also learn how inferences drawn from experiment by scientists led to basic concept of immunology.
तो बेसिकली हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले. Our world in which we live is, in an immunological sense, can be divided into two: self and नॉन सेल्फ. सेल्फ वो जो हमारे खुद के सेल्स हैं या हमारे खुद के एंटीजन्स हैं, और नॉन सेल्फ जिनको हम फॉरेन भी बोल सकते हैं, विच इज़ द एनवायरमेंट सराउंडिंग द ऑर्गेनिज्म. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. क्योंकि हमारी बॉडी भी जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, वो माइक्रोब्स या पैथोजन या एंटीजन्स के साथ जब बाइंड करती है, तो वो उन्हीं एंटीजन्स के साथ बाइंड करती है जो हमारी बॉडी के नहीं हैं, विच आर नॉन सेल्फ. एंड हाउ द इंटरेक्शन between self and non-self occurs. In this unit, focus will be also on a major category of human pathogens and their interaction with the host. It is important to study the pathogens as immune system will help with the help of cells like leukocytes, मतलब कि WBC, work continuously protect for them. We also study in detail the major cells of immune system. हम यहाँ पे cells of immune system के बारे में पढ़ेंगे, उनका genesis पढ़ेंगे. genesis मतलब वो बने कैसे, hematopoiesis कैसे हुआ, and organs के बारे में पढ़ेंगे. So the very first topic is the historical perspective of immunology. Origin of immunology. The documentation of the phenomena of humans' ability to fight a disease appear for the first time in Chinese chronicles around 5000 BC ago. तो बेसिकली पहली बार कि हमारे अंदर कोई एबिलिटी है डिजीज से फाइट करने की, ये चीज़ 5000 साल पहले पता चल चुकी थी. द वर्ड इम्यून वॉज फर्स्ट यूज बाय थ्यूसिडिडस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट हिस्टोरियंस हु क्रॉनिकल नियरली 30 ईयर्स ऑफ वॉर. तो इन्होंने नियरली 30 साल अपने वॉर में दिए, और उस टाइम पे इन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ह्यूमन जो है वो अपनी डिजीज़ के साथ, पैथोजेंस के साथ फाइट कर सकते हैं. 30 years of wars between Athens and Sparta in the history of Peloponnesian War. He described about individual who recovered from plague, which was raging in Athens at that time, and stated that individual who had already contracted the disease recovered and became immune or exempt. तो इन्होंने नोटिस करा कि जो लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, अब उनको ये बीमारी दोबारा नहीं हो रही. उस टाइम इम्यूनिटी ये चीज़ की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम बोल सकते हैं दिस वॉज मेयर हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट टाइम. Edward Jenner and the development of the first safe vaccine for smallpox. तो एडवर्ड जेनर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इम्यूनोलॉजी में, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं. सो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग कि हमारे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है मिस्टर एडवर्ड जेनर. ही वॉज एन इंग्लिश फिजिस्ट. इन 1796 ही कैरिड आउट द फर्स्ट फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन जेम्स फिट्स, the 8-year-old son of his gardener. Jenner developed his theory from the folklore of the countryside that milkmaids who suffered from cowpox never contracted smallpox. उन्होंने बोला, जेनर ने बोला कि जो मिल्कमेड्स है, जो गाय भैंसों वगैरह का जो काम करते हैं, जो उनके पास रहते हैं, उनमें से जिनको काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा. In his famous experiment, Jenner took pus from a cowpox lesion that appeared on the head of dairy maid. उन्होंने एक पर्सन के हाथ से, जिसको काउपॉक्स हुआ था, उसके हाथ से पस लिया, और उस पस को, उस फ्लूइड को उन्होंने इंसर्ट कर दिया दूसरे पर्सन में, एंड इंसर्टेड इट into an incision on James Phipps's arms. तो उन्होंने उसको इंसर्ट किस में कर दिया, जेम्स फिप्स की आर्म में. और जेम्स फिप वही था जो उनके गार्डनर का बेटा था. 6 weeks लेटर जेनर इनोक्यूलेटेड जेम्स फिप विथ स्मॉल पॉक्स. और अब कुछ वीक्स के बाद उन्होंने जेम्स फिप के अंदर कौन सा सैंपल डाला, स्मॉल पॉक्स का. द बॉय डिड नॉट डेवलप द डिजीज. जेनर सब्सिक्वेंटली प्रूव दैट हैविंग इनोक्यूलेटेड विद काउपॉक्स, फिप्स वॉज इम्यून टू स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने देखा कि जब मैंने इसको काउपॉक्स के पास इसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिए थे, उसके करने के बाद इसको स्मॉल पॉक्स के पास डालने से कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स ये उससे इम्यून हो गया. He submitted a paper to the Royal Society in 1797 describing his experiment, but was told that his ideas were too revolutionary and that he needed more proof. That means उन्होंने जितने experiment या जितनी research करी थी वो enough नहीं थी. He has to conduct more experiments. Undaunted, Jenner experimented on several other children, including his own 11-month-old son. In 1798, the results were finally published, and Jenner coined the word vaccine from the Latin word vacca, which means cow. तो एडवर्ड जेनर का सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें याद रखना है, पहली चीज़ हमें याद रखनी है दैट ही इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. सेकेंड चीज़ हमें याद रखनी है दैट ही कॉइन्ड द वर्ड वेका. द नेक्स्ट थिंग
इज़ अबाउट लुइस पास्चर। तो अगर हम बात करें लुइस पास्चर के बारे में, द फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फर्मेंटेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फर्मेंटेशन होती है, ये चीज़ किसने डिस्कवर करी थी? लुइस पास्चर ने। और इसी वजह से पास्चराइजेशन या वाइन बियर सिल्क इंडस्ट्रीज जो थी ये डेवलप होनी शुरू हुई। Pasteur also developed the overall principle of vaccination। वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल था, क्योंकि जेनर ने वैक्सीनेशन नेम करा था, लेकिन जेनर ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि काउपॉक्स का सीरम डालने से जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। बट वैक्सीनेशन जो प्रिंसिपल, जो पूरा वैक्सीनेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, दैट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फाउंडेशन ऑफ फील्ड ऑफ immunology. In 1879, Louis Pasteur was studying the causative agent of fowl cholera. Today, the bacteria that causes diseases are classified in the genus Pasteurella. उस टाइम में फाउल कॉलरा मतलब कि वो बर्ड्स के अंदर जो कॉलरा होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, और अगर हम आज उस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो बैक्टीरिया पैस्टेरेला से बिलोंग करते हैं। बाय इंजेक्टिंग इट इनटू हेल्दी चिक्स, तो उन्होंने क्या करा, उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा हेल्दी चिक्स के अंदर, हु देन डेवलप्ड फेटल कॉलरा। और जब उन्होंने उसे हेल्दी चिक्स के अंदर डाला तो वो चिक्स बीमार हो गए, एंड दे वर डिजीज बाय अ डेडली डिजीज। वाइल डूइंग हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क, लुइस पास्टर वेंट फॉर अ समर वेकेशन. On his return, he resumed his experiment work and injected some chicks with an old bacterial culture. अब उन्होंने एक कल्चर लिया था जहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करे थे। पहले उन्होंने हेल्दी चिक्स के अंदर डाले, देन ही गो फॉर अ ब्रेक। तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड ही डिडंट ग्रो एनी फ्रेश कल्चर। तो जब वो वापस आए, उन्होंने इसी कल्चर से बैक्टीरिया लेकर दोबारा से चिक्स में इंजेक्ट करने शुरू कर दी। He returned and resumed his experimental work and injected some chicks with an old bacterial culture. The chicks injected with old culture became ill. अब जिन chicks में उन्होंने इस कल्चर के बैक्टीरिया डाले थे वो बीमार तो हुए, बट ये फेटल नहीं था। लास्ट टाइम में क्या था, फेटल था, मतलब वो मर रहे थे। बट यहाँ पे दे रिकवर्ड, वो बीमार हुए और ठीक हो गए। दिस इंटीग्यूट पास्चर ही प्रिपेयर्ड अ फ्रेश कल्चर। उन्होंने क्या करा, एक फ्रेश कल्चर बनाया, और अब वो फ्रेश कल्चर उन्होंने कुछ हेल्दी चिक्स के अंदर डाला, so that he could inject it into some healthy unexposed chicks. Unexposed chicks का मतलब है जिसको पहले कॉलरा नहीं हुआ था और जिसको उन्होंने पहले कॉलरा का बैक्टीरिया इंजेक्ट नहीं करा था। बट as is the case with all scientists, he ran out of stock of healthy unexposed chicks. लेकिन धीरे धीरे करके he has only few number of chicks. तो धीरे धीरे करके उनके पास कोई ऐसी चिक नहीं बची थी जो अनएक्सपोज हो, मतलब वो अपनी सारी चिक्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, उनमें बैक्टीरिया इंजेक्ट कर चुके थे। So he also used those chickens which had survived the previous injection of old bacteria culture. तो जो पिछली बार बच गए थे कल बैक्टीरिया इंजेक्ट करने से, अब उन्होंने उसको भी यूज़ करना शुरू करा। सो नाउ ही हैड अ बैच ऑफ हेल्दी अनएक्सपोज चिक्स एंड अ बैच ऑफ हेल्दी एक्सपोज चिक्स। अब जो उनके पास चिक्स थी वो दो तरह की थी। एक चिक्स वो थी जो अनएक्सपोज थी, मतलब जिनको फर्स्ट टाइम वो बैक्टीरिया इंजेक्ट कर रहे थे, और एक बैच वो था, कुछ चिक्स वो थी जिसको उन्होंने ओल्ड कल्चर जब डाला था तब वो बच गई थी। He injected the fresh bacterial culture. Pasteur was surprised by the results he got. Only the healthy, unexposed chick died, while the chickens previously exposed to the older bacterial culture were survived. मतलब कि जो पहली बार जिनकी बॉडी में डला था उनकी डेथ हो गई, लेकिन जिनको पहले भी वो डाल चुके थे बैक्टीरिया जिसकी बॉडी में, वो सर्वाइव कर गई। Pasteur proposed that in the old bacterial culture, aging had weakened the virulence. तो उन्होंने सोचा कि पहली बार में, जैसे जब फर्स्ट इवेंट हुआ था, उन्होंने ओल्ड बैक्टीरियल कल्चर डाला और जो चिक्स थी वो रिकवर कर गई, तो उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे वो एज होते रहे, बैक्टीरिया जो थे वो वीकन अप हो गए, जिसकी वजह से देवर नो मोर फेटल और टॉक्सिक। Pasteur proposed that in the old bacterial culture, aging had weakened the virulence. Virulence मतलब pathogenicity, मतलब the ability to cause disease. That as such weakened or attenuated strain provided immunity against the disease. He called this attenuated strain a vaccine or vacca, जिसका means cow है. To honor Jenner's work with cowpox inoculation, Pasteur was a true scientist and he checked his theory by extending his finding to other diseases. और इसी चीज़ को लुइस पास्चर ने एक डिजीज़ नहीं, बहुत सारे मल्टीपल डिजीज़ पे उन्होंने ये थ्योरी चेक करी कि अगर हम किसी भी डिजीज़ का वीक बैक्टीरिया या वीक जर्म अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पे उस पर्सन को वो डिजीज़ होता है या वो उसको रिकवर कर लेता है।
Pasteur was a true scientist. He checked his theory by extending his finding to other diseases. In 1881, Pasteur performed in a small village of Pouilly-le-Fort a classic experiment where he vaccinated a group of sheep with heat-treated attenuated anthrax bacteria. उन्होंने anthrax bacteria, weak या heated anthrax bacteria जो था वो उन्होंने sheep के अंदर inject करा. After vaccination, he again challenged the vaccinated sheep along with some unvaccinated sheep with a virulent culture. अब उन्होंने क्या करा, पहली बार तो उन्होंने हीट ट्रीटेड मतलब कि वीकेंड बैक्टीरिया डाले थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा, कुछ अनवैक्सीनेटेड शीप्स में और कुछ वैक्सीनेटेड शीप्स के अंदर विरुलेंट कल्चर मतलब कि पैथोजेनिक कल्चर डाला जो कि बिल्कुल भी वीक नहीं था. जितनी भी वैक्सीनेटेड शीप्स थी वो सारी सर्वाइव हो गई क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन जितनी भी अनवैक्सीनेटेड शीप्स थी दे डाइड. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी. In 1885, Pasteur inoculated Joseph Meester, a boy bitten rapidly by a rabid dog, with a series of attenuated rabies virus preparation. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. देखो, वैक्सीन जब होता है ना, वो प्रिवेंटिव के लिए डाला जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जब तक कोई डिजीज़ नहीं हुआ, कोई पैथोजन एंटर नहीं करा, तो उसके वीक जर्म्स पहले डालते हैं. वीक जर्म डालने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ताकि जब एक्चुअल में वो वायरुलेंट वाला पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमें डिजीज़ ना हो. दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर सपोज़ करो किसी की बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर कर गया, जैसे ये एक बॉय था जिसको एक रेबिड डॉग ने बाइट कर लिया, मतलब कि जो रेबीज़ का वायरस था वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया. अब तो वायरस एंटर कर चुके हैं, जर्म एंटर कर चुके हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं है. तो अगर हमें इमिडिएटली उसको प्रोटेक्ट करना है और इस वायरस को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रेबीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसकी बॉडी में इंजेक्ट करनी पड़ेंगी. ठीक है. द रेबीज़ वैक्सीन इज़ वन ऑफ द फ्यू दैट कैन बी सक्सेसफुल व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्टली आफ्टर एक्सपोजर. तो एक्सपोजर के बाद भी रेबीज वैक्सीन उन्होंने लगाया. एज लॉन्ग एज वायरस हैज़ नॉट येट रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बिगिन टू इंड्यूस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. जोसेफ लिव एंड लेटर बिकम अ केयर टेकर ऑफ पास्टर इंस्टीट्यूट. तो इन्होंने क्या करा, उसके अंदर रेबीज़ का वायरस का प्रिपरेशन ही लगाया, मतलब इन्होंने वैक्सीन लगाया, लेकिन वैक्सीन की कंडीशन ये थी कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में डॉग बाइट के, रेबिड डॉग बाइट के बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वो उन्हें इंजेक्ट करना था. इन द मीन टाइम जब तक वो वायरस उस बॉय के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ना पहुँचे. The next thing is the emerging distinction between cellular and humoral immunity. Metchnikoff, von Behring and Ehrlich. तो there were three biologists जिनके काम ने हमें सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया. अब यहाँ तक एडवर्ड जेनर और लुइस पास्टर के काम से हमें ये तो पता चल गया था कि इम्यूनिटी एक चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हमें पैथोजेंस और डिजीज से बचा रहा है. लेकिन वो सिस्टम सेल मेडिएटेड है, वो सिस्टम एंटीबॉडी मेडिएटेड है, इसके बारे में लाइट किसने डाली, इन तीन बायोलॉजिस्ट ने. So in this we'll study in the about this we'll study in the next lesson. Thank you so much.